कोशिश करते हैं। तो रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ओके, तो आई थिंक कुछ और वॉलंटियर भी ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। आई थिंक रंगा ने ज्वाइन किया है यहाँ पे। आई थिंक सब लोग हिंदी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में पूछेंगे तो मैं आप मदद कर दूंगा थोड़ी ट्रांसलेट करने में। अगर आपको आई थिंक इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती ही है वैसे, अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं मदद कर ऐसे दूंगा। तो ऐसे तो मैं बोल लूंगा, पर कुछ फ्लुएंट में थोड़ी दिक्कत है। ठीक, कोई नहीं, या ठीक है। ओके, Hello, Ashok ji. या Hello. Yeah, and Mohit, the questions I had just sent you earlier in email so that you could So translate so I Hindi and stuff. so what we'll do is we'll ask those questions, depending on the context. Like we'll make sure that the tour is done, and then we can, as and when, like we feel. You can coordinate and you yeah. can translate into Hindi if needed, and just Yeah. based on as and when it comes, if it's relevant, you can check on those. No, I got those questions. I think I've been asking those questions, and then some maybe for Shubham. So I think Shubham will join in a few minutes. So हाँ, शुभम जी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, करेंगे। So I've put the meeting on record. So it's already recording. Okay. So it looks like Shubham is joining. And hi Shubham, how are you? Hi Mohit. So I'm Mohit. We have Ranga, and I think we have Meenal as well from Asha Austin. And we have now Srinidhi from Austin. So for those who are joining, Shubham is the sort of main contact person. He's I don't know, Shubham, what is your designation at the GSK? He's the person I've been interacting, and Ashok ji is the head teacher or the lead teacher in Girirajpura school. And Shubham, you want to add anything else from your side? Yeah, hi everybody. My name is Shubham. I'm the executive director of Gramin Shiksha Kendra, and as you all know that, and we have Ashok, who is the team leader from Girirajpura team. As you all know about Girirajpura, which is a relocated village from the Ranthambore National Park. The village was relocated in 2011, and with the help of Asha, we could set up a school, the only school in the village in 2004. So now we have an enrollment of around 105. Ashok ji, कितना enrollment है अभी currently? अभी 105. 105. Yes, and amidst the pandemic, we have used different approaches of engaging with the children, especially when the schools were under the lockdown. We worked with the children by setting up small centers across various hamlets, various villages, where the children were coming from. So I think, so now since the schools were open for a month or so, classes from 6th onwards are coming to the schools, and the rest of the younger kids are learning in the same fashion through small groups which were set up in the villages. So Ashok ji will take us through the school first of all,
And then if time permits, we can also see some of the centers which are running near the schools. Okay, so Mohit, can we from start? yeah, absolutely. I just wanted to make Shruti, thanks for joining. Meenal, Ranga, and Srinidhi. So we'll have Ashok ji give us a tour. So Ashok ji, आप start करिए. हाँ, ये अभी फिलहाल जो क्लास चल रही है ये 6 7 के बच्चे हैं और अभी बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ पुष्प हैं, तो पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन बच्चों के पास भी है पुष्प और उस हिसाब से ये देख रहे हैं कि पुष्प में कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये एक तरह से करके देख रहे हैं। ये हमारे टीचर हैं, लोकेश जी साइंस के टीचर हैं। तो फिलहाल ये चल रहा है यहाँ पर साइंस So वाला। ये कौन सी कक्षा है? ये 6 7 वाले हैं। 6th 7th वाले. अच्छा, ठीक. So this is class 6 7. हाँ हाँ, ये 6 7 है। उधर दूसरे रूम में क्लास 8 चल रही है। तो अभी लोकेश जी फिलहाल हैं, इधर इंगेज हैं, तो वो अपने आप कुछ कर रहे हैं काम। तो 1-2 मिनट में वो उनको भी समझाएंगे दूसरे रूम में, क्योंकि थोड़ा क्लास अलग अलग है। कोविड को ध्यान में रखते हुए एक जगह थोड़ा समझाने का कर रहे हैं, फिर ये अलग अलग बैठ जाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है. उनके नाम लिखोगे। ये अभी फिर इनको समझा दिया गया है। अभी ये सेल्फ काम करेंगे, फिर बच्चे अपने आप इन उसके हिसाब से देखेंगे और फिर ये करेंगे, ये अपने आप करेंगे। हाँ, इधर थोड़ा सा ये और बता रहे हैं बोर्ड पर। ये कुछ डायग्राम बना हुआ है, उसके माध्यम से साइंस में क्या बोलते हैं उस हिसाब से नाम बता रहे हैं, साइंस के हिसाब से। अच्छा, टीचर का नाम क्या है? एक बार याद दिला दें. ये हाँ, लोकेश जी हैं। लोकेश जी. लोकेश जी हैं टीचर। भाई इधर देख लिया सबने? भाई दल के बाद में हमने पुष्प के अंदर रंगीन संरचना देखी थी। अभी ये एक सेंटर ओनली जो अपर प्राइमरी है 6 7 8 ये ही फिलहाल अभी स्कूल में चल रहा है और वो आज ही चलेगा। बाकी शाम से लॉकडाउन है, तो कल से इधर भी ये गांव में चलेंगे पूरे सेंटर। और अच्छा, और बाकी जो है पास में लगभग 100 से 150 मीटर आगे सेंटर चल रहे हैं, अलग अलग अच्छा. क्लास वाइज, अलग अलग ग्रुप वाइज चल रहे हैं। तो मैं अच्छा, उधर तो भी चलूंगा। हाँ, वहाँ चलते हैं. हाँ, पहले मैं इधर, ठीक. हाँ, तो मैं दूसरी क्लास एक बार और बता देता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल. उनके साथ अभी साइंस का ही चल रहा है। अभी लोकेश जी उनके साथ एंगेज हो जाएंगे। ये 8th क्लास के बच्चे हैं। मैं अभी इस रूम में जा रहा हूँ, फिर हम सेंटर पर चलेंगे। Folks, if you have any questions, please feel free to ask in the middle also. So Mohit, you're taking down notes, right? And the attendees and all. The meeting is being recorded. So yeah. ये अभी क्लास 8 वाले बच्चे बैठे हैं, तो इनका मटेरियल तो तैयार है, पर अभी जो लोकेश जी आएंगे तो अभी ये आ गए हैं और इनके साथ शायद किस टॉपिक पर बात होगी आज इनके साथ? हम दाब पढ़ रहे थे। ये प्रयोग ले रहे थे, दाब के आज प्रयोग। ये कुछ दाब का टॉपिक है, उस पर पढ़ेंगे। Yeah. So Shubham is noting that this is one of the classrooms that we help build at Girirajpura. अच्छा, टीचर ये सेम टीचर हैं या अलग टीचर हैं? नहीं, लोकेश जी हैं स्कूल में। अच्छा, अभी फिलहाल साइंस का चल रहा है, तो अच्छा, अच्छा. रूम अलग अलग हैं,
पर वो अच्छा। साइंस का ही चल रहा है फिलहाल, है ना? तो उनको अभी उन्होंने एक्सरसाइज देके फिर यहाँ पे आ गए हैं उनको। हाँ, वो उनको अब वो बच्चे सेल्फ कर रहे हैं, उनको वो दिया है पुस्तक पे, तो वो अब करके देखेंगे, फिर ये रोटेट होते रहेंगे, देखते ठीक। रहेंगे, फिर प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है। तो क्या हम गांव में चलें या कुछ यहाँ देखने की जरूरत है फिलहाल? मैं इसमें एक ये चीज और कौन ऐड सी करना कक्षा के चाहूंगा। बच्चे हैं? हाँ, आई थिंक श्रुति का क्वेश्चन था। सो श्रुति, दिस इज क्लास 8 I think हाँ kids, and the previous classroom was class 6 and 7, right? Right. Shubham? Yes, Shubham? yes, Yeah. Okay. yes. So I think So Shubham, you I would wanted to add also, something? yeah. So I wanted to say that in the schools we also promote self-learning a lot, self-improvement learning. So that role of a teacher is of a facilitator rather than giving instructions to children. And that's how what we are seeing here is children are sitting in different groups, even different classrooms also, and they are learning. The teacher's role is just to facilitate the learning. Most of the time, many of the time, children are engaged within themselves in subgroups, and they are helping each other in learning. Okay. Okay. Thanks for that. I'll unmute Ashok ji. अशोक जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया था थोड़ी देर के लिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर बाहर का अच्छा, टूर अच्छा। थोड़ा एक बार आई थिंक आप बाहर का थोड़ा दिखा दीजिए हमें। हाँ, हाँ, देखो जो ये कैंपस है। हमारी ये पुरानी बिल्डिंग है। जब हम यहाँ से शुरुआत की थी तो ये एक तरह से कम्युनिटी हॉल है, और इसके बाद ये शुरुआत में मिला था, तो और इस ये कम्युनिटी हॉल में अभी भी क्लासें होती हैं या हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। ऑफिस है और कुछ लाइब्रेरी सेटअप की हुई है, रूम्स, अच्छा। और कुछ कंप्यूटर के लगे हुए हैं, और अच्छा। यहाँ क्लासरूम इधर भी है, पर अब कोविड के कारण अभी अपर की है, तो इधर ही बैठ जाते हैं बच्चे 2 रूम्स में। और ये पूरा है, ग्राउंड है, ये पेड़ वेड़ लगे हुए हैं हमारे इधर कुछ, ये पूरा अच्छा। ग्राउंड है एक तरह से, ये इतना तो बड़ा। ये जो ओपन ग्राउंड है, ये कम्युनिटी सेंटर का ग्राउंड है एक तरह से, स्कूल के लिए। ये हाँ, पूरे यहाँ वॉल है पूरी, ये पूरी दीवार लगी हुई है इसमें पूरी में, पूरे So when this school was set और up, ये when this village प्ले was set ग्राउंड up, है। basically this land was allocated for constructing the school and medical facility. But since there is no medical facility or school as such, तो community की help से community ने हमें ये जमीन दी थी कि आप यहाँ पे स्कूल शुरू कर दीजिए. So we have consent of the community and of the panchayat also. यहाँ पे फिर हमने स्कूल शुरू किया. So this is a playground also and community hall. So community meetings also happen at this place. Right. Thanks. So any update on the title deed of this Okay. land, because it's still with the forest department, right? Or Unfortunately, I mean, there is no update and there's no discussion at ये all. 3 Most of the times we have raised this issue many times in front of the district forest officer and state forest officers also. We also took some of the members, around 17 members from Girajpura community to Delhi to meet Inspector General of Forest. They also promised them that they will raise the issue in the next parliament hearing, but nothing has been done so far. Even other families which are being relocated to other areas, they are also getting the same issue. They are not getting title of their lands even now. so what can be done? As in, is there any timeline, or what's the goal of GSK to help resolve? So ideally, it should have happened at the time of relocation itself. Even in the Forest Rights Act. Forest Rights Act also says that the community can only be relocated once all these facilities are given to the villagers. So government is not, of course, it should have happened in 2006, but till now there is no discussion. There was no promise at all from the government authorities.
We also filed RTI to kind of inquire about how many villages and how many families have got the titles of their lands, how much spending has been done by the government on the relocation process, especially in Girajpura. But nothing concrete, nothing very substantial came from those responses from the government as well at that point of time. Okay. Yeah, let's keep moving. अशोक जी आगे बताइए। यहाँ पे अभी जैसे आप कह रहे थे कि क्लास 6, 7 और 8 चल रहा है, तो बाकी बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी? बाहर गांव में आप बता रहे थे कि बाहर गांव में मिल रहे हैं। अभी आप म्यूट पे हैं। तो मैं जस्ट 2 मिनट में ही अभी पहुंचने वाला हूँ। अच्छा। बस मैं जा रहा हूँ, है ना, फिलहाल 2 अच्छा। मिनट में अभी। तो ये मैं जब तक गांव बता देता हूँ कि ये किस तरह से, ये देखो ये गांव है ये जस्ट रणथंभौर से रिलोकेटेड हुआ है। ये गांव है इधर। और मैं अभी यहाँ पे जैसे कोविड के केसेस गांव में मतलब पता नहीं टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कि कितना एक्सेसिबिलिटी है इस चीजों की। पर यहाँ क्या लोग ज्यादा बाहर जाते नहीं हैं, यहाँ ही अच्छा। रहते हैं, आसपास ही एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई केस है नहीं फिलहाल गांव में तो, अच्छा, है ना। तो ठीक है। बाहर मार्केट में जाने वाले लोग कम हैं। अच्छा, और जैसे स्कूल की आपको अटेंडेंस कैसे लगे, मतलब थ्रू द जैसे पिछले साल, जैसे कोविड से पहले और उसके बाद, और या अटेंडेंस अटेंडेंस देखी जाए तो यहाँ लगभग 85 से अबोव ही रहती है डेली भी अच्छा। देखी जाए तो। अच्छा। 85 से 90 के बीच में रहती है। और उस तरह का। तो फिलहाल मैं जहाँ पर सेंटर चल रहा है यहाँ पर आ गया हूँ। और ये हमारे कुछ प्री प्राइमरी के बच्चे हैं। अच्छा। जो हैं, और ये हमारे मुरारी जी हैं, लेडीज टीचर है, लेकिन आज वो फिलहाल ऐप से आज छुट्टी पर है, लीव पर हैं। तो एडजस्टिंग मुरारी जी हैं, ये कला शिक्षक भी हैं और खेल टीचर भी है। तो फिलहाल ये हैं, और ये प्री के बच्चे हैं। तो इनके साथ क्या है, ये वर्कशीट है और कुछ हैंड बैलेंस का काम करवाया जाएगा इनके साथ। ये कलर वलर करेंगे हैंड बैलेंस वाला। और ये तो 2, 3 वाले बच्चे हैं ना। इनका मुरारी जी कौन सा हाँ, ये गेम खेलेंगे अभी। थोड़ा दूर से खिला लो इनको, बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो। ये गेम है कुछ, क्या नाम है बच्चों गेम का? रुमाल झपट्टा। हाँ, तो ये ऐसे कुछ रुमाल झपट्टा वाला गेम खेलेंगे एक क्लास। तो इधर 2 क्लासेज यानी 2 ग्रुप चल रहे हैं रुमाल झपट्टा वाला, यानी एक तो गेम का है, और इधर ये प्री प्राइमरी के बच्चे कुछ हैंड बैलेंस का काम कर रहे हैं अभी। यहाँ 2 क्लासेज हैं। टीचर एक है फिलहाल, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है, एक इन टीचर एब्सेंट होने के कारण। अच्छा, तो ये सारे बच्चे गिरिराजपुरा के ही हैं जो यहाँ पे? ये गिरिराजपुरा के भी हैं, कुछ 2-3 किलोमीटर बाहर से भी आते हैं। अच्छा। पर अधिकतर गिरिराजपुरा के ही हैं। अच्छा। यहाँ बाहर से भी आ रहे हैं 2-3 किलोमीटर से। अब जैसे कुछ बच्चे इधर वाले हैं तो ये बाहर के भी हैं। इनको अपने गार्जियंस छोड़ के जाते हैं इनको सबको। अच्छा। कम से कम 40-45 बच्चे अपने गिरिराजपुरा से बाहर के हैं यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, कल होगा? हाँ, कल। अच्छा। हाँ, 6 बजे बाद में है।
वैसे लॉकडाउन ही चल रहा था, स्कूल तो अभी 8 फरवरी से ही खुली हैं अपर के लिए। बाकी तो हम यहाँ गांव में ही सेंटर चला रहे हैं। पहले तो हम जो कर रहे थे, अलग अलग जहाँ से बच्चे आ रहे हैं ना, वहीं पर सेंटर चला रहे थे कि 10 15 20 बच्चे उधर हैं तो वहीं ग्रुप बना दिया। फिर अभी हमने लगभग फरवरी से एक जगह ही बुला लिया, जब थोड़ा सा वो हो गया था, जब बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चे भी आने लग गए थे। तो हमें जाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, आने जाने में भी, है ना। और वो सब्जेक्ट अच्छा, वाइज भी। तो अब यहाँ तो क्या प्रॉपर काम कर रहे हैं फिर। तो ये पीछे जैसे ये कुछ ये घर बने हुए हैं, इसके इन बच्चों के हाँ पीछे ये क्या है? हाँ ये घर है ना, ये इनके अच्छा, गांव है। गांव गाँव है। में जैसे ये बच्चों के घर है ये पूरा। अच्छा, कुछ ये कुछ देखो, कच्चा कुछ पक्का दिखाई दे रहा है, तो उसमें मतलब हाँ कुछ आगे जैसे हट्स हैं, झोपड़ियाँ तो, और हम्म, कुछ पक्के भी हैं इस तरह से। तो यहीं के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। और ये थोड़ी ओपन जगह है, तो ये यहाँ ओपन में बिछा लेते हैं यहाँ पर अच्छा, पेड़ के तो नीचे। जैसे लॉकडाउन होएगा तो फिर अगले हफ्ते फिर क्लासेस बंद है सारी, सब बच्चों की, या कैसे करेंगे? नहीं नहीं, लॉकडाउन तो शुरू से ही चल रहा था। हम तो सेंटर पर चला रहे हैं ना, एक तरह से एक हेमलेट हाँ, ऐसे चुन लेते हैं भाई। ठीक पहले है। तो अलग अलग टीचर अलग अलग गांव में जाते थे, तो हमारा क्लास तो वो ही चल रहा है जैसे चल रहा था, रनिंग है पूरा हमारा तो। ठीक है। बस वो स्कूल के अंदर नहीं बुला रहे, पाबंद वहीं है ज्यादा, है ना। तो ये है। तो एक क्लास और है, आगे दिखाऊं या कुछ इधर बातचीत करनी है इन बच्चों से? Any other question, any questions, anybody on this? I think Meenal, I've asked your question. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फ्री के बच्चे सेल्फ काम कर रहे हैं, इनके साथ टीचर एंगेज है और ये कर रहे हैं। तो मैं दूसरी एक जो ठीक है, जस्ट यहीं पर दूसरा सेंटर चल रहा है, तो मैं वहां पर जाता हूँ। ठीक तो है। वहां देखते हैं। तो जो जो बच्चे खेल रहे थे वो भी प्री के थे, या वो नहीं वाले? नहीं नहीं, वो 2 3 के हैं, सेकंड थर्ड। अच्छा, टू, ओके, तो ठीक है। वो खेलने वाला अलग ग्रुप है, सेकंड के थर्ड अच्छा, के बच्चे हैं। और ये इधर फ्री के हैं, ये हैं। तो अभी मैं चलता हूँ इधर, ये सेंटर तो है जैसे हमारे। एक ही टीचर थे वहां पे जो दोनों को संभाल रहे थे आज? हाँ 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 हाँ, फिलहाल। ओके ओके। तो और अभी मई जून में तो यहाँ पर एक ग्रुप है, ये आई थिंक, हमारे शैलेंद्र जी है। या फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चे हैं। तो यहाँ चल रहा अच्छा है असेसमेंट चल रहा है यहाँ पर अभी। अच्छा ये असेसमेंट चल रहा है फिलहाल। ये फोर्थ क्लास है और ये इधर फिफ्थ क्लास बैठी हुई है यहाँ पर। ये इधर ये असेसमेंट चल रहा है। किसका असेसमेंट, कौन से सब्जेक्ट का है? हिंदी का असेसमेंट चल रहा है अभी यहाँ पर। अच्छा। एक आई थिंक श्रुति ये का क्वेश्चन था, एक मिनट, श्रुति, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मई जून में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, तो फिर बाहर क्लासेस कैसे चलाने का विचार है? नहीं, मई जो अब जैसे छुट्टियां लग जाती है, 15 तारीख तक अच्छा, ही सेशन है ओके। एक तरह से, अभी 15 मई तक। उसके बाद तो समर वेकेशन लग जाता है। हम्म। तो फिर जब रीओपन दोबारा होंगे तो फिर वो तो जुलाई के आसपास रीओपन होंगे दोबारा स्कूल। अच्छा, तो फिर जुलाई में भी सेम प्रॉब्लम होगी ना, गर्मी काफी बढ़ जाएगी, तो कैसे हाँ, तो कंटिन्यू हम कैसे इसी करें? तरह के देखो, जैसे जहाँ जैसे सुटेबल जगह होती है, तो जैसे पेड़ के नीचे बिठा लिया, ऐसे टापरियों पर घर में पक्के जगह पर देख लेते हैं। यानी एक तरह से कम्युनिटी वाले जगह प्रोवाइड करवा देते हैं हमारे को, भाई यहाँ पर डालो इधर। तो फिर जैसे अच्छा, जैसे है सिचुएशन के हिसाब से हम वैसे ही कर लेते हैं ठीक है। ये। तो ये है सेंटर। हाँ, तो ये हमारा लास्ट ग्रुप है फिलहाल यहाँ का। तो एक चीज थोड़ा मे बी ये बता सकते हैं कि बच्चों का दिन कैसे जाता है, जैसे शुरू सुबह क्या करते हैं, जैसे अपनी देखे हमने, लाइक 8वीं कक्षा के, 6ठी कक्षा के,
चौथी कक्षा के ऐसे अलग अलग देखे, बट वो सब अलग अलग चीजें कर रहे थे। तो दिन कैसे जाता है, मतलब पूरा दिन का स्केड्यूल क्या कैसे रहता है? हाँ, जो दिन का शेड्यूल ऐसा रहता है कि प्रत्येक प्रत्येक टीचर के पास अपना प्लानिंग होती है, और वो 40 से 45 मिनट तक का एक पीरियड होता है। उस हिसाब से ही वो देखता है कि उसमें सब्जेक्ट भी आ गए, आर्ट का काम गया, गेम का भी काम आ गया, यानी गेम भी है, लाइब्रेरी भी है। कुछ हद तक जहाँ वहीं अभी फिलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो ये एक टीचर के पास पूरा शेड्यूल होता है अपना, पूरा 8-9 घंटे का जितना भी हमारा है वो पूरा शेड्यूल होता है, और उस हिसाब से फिर वो तैयारी करते हैं। ठीक है। तो मतलब स्केड्यूल में आपके खेलना भी होता है, खेलना भी होता है, हिंदी, लाइब्रेरी के गणित? बुक्स, हाँ, सब्जेक्ट पूरे। फिर उसके हम्म, अलावा कोई स्कॉलरशिप एरियाज में जितने भी हम कर सकते हैं वो पूरा करते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो ये लास्ट फिलहाल हमारा ये सेंटर है। आई थिंक वीडियो आपका रुक गया है थोड़ा, Yeah, so अभी Mohit, धीरे one thing धीरे was चल the रहा है। impact हाँ, of this, right? So how do we know that the mini schools, like, what's the impact of this style of, because it's pretty nice, हाँ, right? It's low cost and yeah. not much technology dependent. It's a very nice way So of yeah, doing it. So how हाँ। are they gauging the impact of So this? आप आई थिंक एक प्रश्न अशोक जी ये है कि आपका ये जिस तरह आपने स्कूल अरेंज किया है उसका आपने किस तरह का इम्पैक्ट लग रहा है आपको कि मतलब अगर नहीं करते वर्सेस करने का क्या अंतर रहता? और हाँ। टीचिंग में मतलब जैसे अगर मान लो कोविड नहीं होता तो कैसी हम्म, टीचिंग जाती? क्या बच्चे बेटर कर रहे होते? तो उसका थोड़ा आप टिप्पणी हाँ, करके तो बताइए। मैं पहले बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर स्कूल अगर स्टार्ट नहीं करते तो जब यहाँ गांव जब आया था तो देखी जाए तो बच्चों का एनरोलमेंट तो था स्कूल में, बट बच्चे जाते नहीं थे। 1 घंटा जाए और यहाँ जो है मिड डे मील खा करके वापस आ गए। दूसरी ये कम्युनिटी ऐसी है कि इतनी अवेयर नहीं है कि भाई बच्चों को पढ़ाया ही जाए, कितना कंपलसरी है। अधिकतर लोग इलिटरेट हैं। तो जब ये आए तो हमारे यहाँ की एक तरह से देखी जाए तो रेगुलरिटी बच्चों की इतनी अच्छी है आने की, और कोई भी रोकता नहीं है बिल्कुल भी। कम 85 से 90 तक तो पर मंथ हमारे एवरेज रहता है। और अगर ये हम नहीं आते तो हो सकता है यहाँ पर लड़कियां पढ़ नहीं पाती, क्योंकि जाती नहीं थी। हम्म, और हमारे हम्म, यहाँ से थोड़ा फाउंडेशन थोड़ा ठीक है, तो आगे भी लड़कियां जा रही हैं। तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, एसएमसी मीटिंग होती है, महिला मीटिंग होती है, और जब हम कांटेक्ट करते हैं डोर टू डोर, तो हम इस बात को प्रेशराइज करके या इनको समझाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। दूसरी समस्या ये भी थी यहाँ पर कि यहाँ पर अधिकतर जो है स्मोकिंग, यानी एक तरह से गुटखा उटखा खाने की यहाँ भी ज्यादा लत है इस एरिया में। तो अच्छा। अगर हम यहाँ नहीं आते तो लगभग सभी बच्चे आज गुटखा खाते रहते होते, और इनके लिए एक तरह से बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायी होता है ये। तो हमने कम से कम बच्चों को तो ये तंबाकू फ्री कर दिया। बच्चे तो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है 100%। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। ये हुआ है ना। अशोक जी, ये भी सवाल था कि कोविड के टाइम पे जो हमने ये जो केंद्र बना के पढ़ाई शुरू की है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या फर्क होता? ये भी सवाल है मोहित का। हाँ, बिल्कुल सवाल सही है कि अभी हम देख रहे हैं आसपास गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स में, तो वहाँ पे बच्चों को देखा जाए तो लगभग स्थिति 0 है। पर हमने तो जब से कोविड में चालू किया तो हमारे बच्चों को, इनके पेरेंट्स को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि स्कूल बंद भी हुई है। तो बच्चों का लेवल, बच्चों का बोलने का, बच्चों की जो कैपेसिटी है, जहाँ तक हो सका है हमने उसको अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश की हमने तो।
और एक तरह से बच्चों का लेवल वही है, क्लास लेवल है एक तरह से देखा जाए तो। और नहीं करते तो ये ऐसे ही घूमते रहते बिल्कुल जैसे और बाकी बच्चे हो रहे हैं उस तरह से होता रहता है। ठीक है। Shubham, you want to add anything, your thoughts to this? Yeah, so basically, what we did during the lockdown is absolutely, you know, instrumental in a way that all of the government schools were closed during that time, and now we have seen several reports where it is being said that the level of children has gone significantly down because of the closure of schools. In Uday schools, we have ensured that the level remains maintained. The level of the learning level of children should be up to the mark, should be at the age appropriate level, and there was no drastic difference which came up in the learning level of children or in the routine of children because of the COVID. Also, when we analyze the situation at the beginning of COVID, when in March or sometime in April or May, we found out that there was very little impact on villages in Savai Madhopur, vis-a-vis what we were seeing in major cities. The government had this universal policy कि सब कुछ लॉकडाउन करना है, सब कुछ बंद करना है, तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया. बट हमने कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ द विलेजेस जहाँ पे कोविड के जो केसेस थे बहुत ही मिनिमल थे, we then started to do these classes and it was very well accepted by the community also कि वो देख रहे थे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं वो पूरी तरह से वो अब डिटैच हो चुके हैं एजुकेशन से. बच्चे एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, फील्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लड़कियां हाउस होल्ड चोर्स में इन्वॉल्व हैं, छोटे बच्चे घूम रहे हैं बाहर, बट देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ structured learning environment within the households. So through these, by setting up these centers, we have ensured that every child should be able to continue his or her education in a almost similar fashion when they were going to the schools. Yeah, Shubham. So my thing is that what you guys are doing is phenomenal, great, and very low cost, right? Even you're not like saying it's rural, so you need some technology and devices and to teach and all that. It's just back to basics, small groups and one teacher or facilitator working with them. And I'm surprised that like government schools are not doing that, and it's anyone can do this, right? And so in another state, similar thing, government schools are shut down and nothing is happening, the children are not being engaged in any form of education. So did you have to work with the government or anywhere, local communities, authorities, to get approvals, or is it how did you go about this, as in if schools are technically supposed to be locked down and you're continuing in this mini school approach? So the first thing was to take consent from the community, because that is where most of the fear was very much prevalent within the village communities. There was lack of information among the community members, and there was a lot of misinformation about COVID. So the first thing which we felt was essential to start these centers was taking consent of the community and get their confidence back that we can still work with their children. Talking about the government side, because the government has always been very reserved and very kind of concerned about starting any sort of coaching classes, tuition classes, etc. So we also realized that if we directly ask government that can we run these centers, because we are probably one of the first organization in Rajasthan or maybe in Savai Madhopur which started such sort of which use such sort of educational approach. We were not very sure that government will be very much will accept this proposal or will accept this idea of starting up this work. So we then we then go through the guidelines of the government, and we thought that there was no violation at all. So according to the COVID guidelines which were released by the government. So then we started these centers. We also then when these centers eventually
kick-started, and we were seeing that there were good results. Then we shared this idea with the district collector of Savai Madhopur also, and then he accepted this idea. Especially, one of our article got published by Learning Curve magazine by Azim Premji University, and it also gave us a lot of highlight about how we are using, while maintaining all the safety precautions, we are still continuing to work with the children. And that gave us some sort of acceptance by the government administration as well. But we did not directly approach them to ask if we can start these centers or not. Yeah, thank you. Okay. Any other question? I think Meenal had a question for the class 8. What was the boy-girl ratio? I think we could see maybe only boys there. अशोक जी, आपको याद है जैसे 8वीं कक्षा में गए थे पीछे, आई थिंक स्कूल में था जब, तो वहां पे लड़के भी थे या लड़कियां भी थी क्या लड़के ही थे? आप म्यूट पे है, सॉरी, मैंने आपको थोड़ा म्यूट पे कर दिया था, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज अनम्यूट। लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं, वो तो क्लास में तो लड़के और लड़कियां। अच्छा अच्छा, नहीं जिस वक्त आप गए थे तब दोनों ही थे, लड़के लड़कियां दोनों ही थे, कि आपको याद नहीं? हाँ बिल्कुल, नहीं लड़के लड़कियां बच्चे दोनों ही थे, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। ठीक ठीक, को एजुकेशन ये है। ठीक है। और नंबर बता सकते हैं आप, कितना अपना एनरोलमेंट कितना होगा लड़की लड़कियों का 6, 7, 8 क्लासेस में, याद है? यानी लगभग 57 लड़के हैं और 45 के आसपास ऐसे कुछ लड़कियां हैं। 45 टोटल नंबर है। हाँ, कुछ थोड़ा ही डिफरेंट है, 10 से 12 तक का, नहीं तो लगभग इक्वल रेशियो है। ठीक है, अगर टाइम बचा तो आई थिंक वहाँ पे मे बी एक बार वापस जाके देख लेंगे। अभी आप आगे और कोई और क्लास हो रही है? बस हाँ, यहाँ गांव में यही है और मेरे स्कूल में ही है, बाकी तो यही है। ठीक है, तो टोटल आज हमने 3 टीचर देखे। हाँ, 3 है, चौथा मैं हूँ, एक मैडम। अच्छा, एक मैडम जो आज नहीं आई है। मैडम आज लीव पर है, कोई बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी उनकी, तो वो लीव पर थी। और स्पोर्ट्स टीचर हैं वो स्पोर्ट्स टीचर, हाँ ये मुरारी जी है ना जो फिलहाल अभी है। अच्छा, वो ही स्पोर्ट्स के टीचर हैं। ओके, ठीक है। Let's see if we have any other questions. It's a good time to ask. आपको जैसे स्कूल में इस टाइम पे, कोविड टाइम पे, कुछ ऐसा लगता है कि होना चाहिए था, या अगर हो तो बच्चों के लिए और पढ़ाई में मदद होगी? हाँ, खैर वैसा तो नहीं है, हम पूरी गाइडलाइन, जैसे बच्चों के पास मास्क है, कोविड से संबंधित तो हमारे पास है फिलहाल तो। अच्छा, सैनिटाइजर है। अच्छा, ऐसा और बच्चों के लिए लाइब्रेरी आई थिंक कुछ बुक्स भेजी थी यहाँ से किसी एक डोनर ने। वो मिली तो बच्चों का कैसा रिएक्शन था? बच्चे पढ़े हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगी बुक्स, क्योंकि वो नई थी उनके लिए, क्योंकि लाइब्रेरी तो हमारे पहले से सेटअप है, बच्चे पढ़ते हैं, पर उनको कुछ नई बुक्स मिली तो उनको ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव सा लगा। अच्छा, तो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं ये? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फिक्शन? ज्यादा तो हिंदी वाली पढ़ते हैं, और इंग्लिश की भी है हमारे पास, तो इंग्लिश की भी देते हैं हम पढ़ने के लिए, पर इंग्लिश के में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं, पर हिंदी को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज समझने में ज्यादा अच्छी लगती है जब। ठीक है। और आप जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग रेगुलरली चल रही है, और किस तरह से कर रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग आजकल? हाँ देखो, ट्रेनिंग में तो स्कूल में तो खैर
हम करते रहते हैं। जैसे किसी टीचर को कोई प्रॉब्लम आ गई नया है तो वो कंसेप्ट बेस होता ही है, नहीं तो हमारी जैसे फिर ऑफिशियली चलती है, समर वर्कशॉप तो चलती है। इसके बाद में जब दीपावली की बड़ी बड़ी जो भी छुट्टियां आती हैं तो फिर वो ऑफिशियली होती है। So generally we conduct training 3 times in a year. The official training which Ashok ji is talking about. One is summer during the summer vacation. The second is during the Diwali vacation, and the third is during the winter vacation. So these are almost a month long training, which generally happens every year. Apart from it, was what Ashok ji is also saying, that there is a kind of a system in place where teachers in a school sit together, discuss their challenges, review their lessons, and take feedback from one another. There is also a dedicated time for learning activities after the school hours. So, for example, there is a dedicated 1 hour schedule for every teacher to work on English language. So, be it an arts teacher, maths teacher, or English teacher also, they'll all sit in a group and engage in some sort of English learning activities, speaking, listening, writing, and reading sort of activities. There's a proper plan, and an English project coordinator basically helps the teacher in drafting the plan. The other example is learning computer. So everybody in the team now is equipped to write their reports on computer. Even they also do various sort of research on computer if they want to kind of while preparing their lesson plans. They also take help of internet to search more information which could be imparted to the children. Okay, so where is internet available? मतलब यहाँ गिरिराजपुरा स्कूल पे इंटरनेट अवेलेबल है या वैसे हम ही कनेक्ट कर लेते हैं, वैसे नहीं है वाईफाई पर, मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, एक बार जैसे सबको मे बी लाइब्रेरी दिखा दीजिए अगर आप वापस स्कूल आ गए हैं। हाँ 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 बिल्कुल। टॉयलेट बाहर से दिखा दीजिए, लाइक सबको हाँ हाँ आइडिया लग जाए कि यहाँ पे स्कूल के कैंपस में टॉयलेट भी है, लाइब्रेरी हाँ भी हाँ है, हाँ हाँ मैं ऑफिस दिखा दीजिए एक बार ऐसे ही। और अशोक जी बिल्कुल पूरा व्यू भी दिखाना, पूरा जो हाँ स्कूल का हाँ व्यू है ना अपना। हाँ 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 मैं दिखाया था। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं टॉयलेट की तरफ से जा रहा हूँ, और ये फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ये अपनी पहले वाली बिल्डिंग थी, तो ये बिल्डिंग इधर है, इधर बच्चे पढ़ते हैं, तो ये टॉयलेट की तरफ मैं जा रहा हूँ। इधर ये ग्राउंड है अच्छा फुटबॉल का मैदान है ये। उधर ये वॉलीबॉल का है, उधर खो खो का है, वो हैंडबॉल का है। इधर ये पूरी वॉल लगी हुई है। इधर ये टॉयलेट फैसिलिटीज हैं इधर। ये टॉयलेट है इधर। ये टॉयलेट इधर है। तो ये है ना? लड़कों और ये लड़कियों के लिए अलग अलग ये बने हुए हैं, ये जेंट्स का, लड़कों का है, ये और दूसरी लड़कियों का तरफ लड़की। ओके है। ये लड़कियों का है इधर। ठीक है, तो वो अलग बने हैं। हाँ ये अभी जैसे लाइब्रेरी दिखा दीजिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल। So in terms of infrastructure, we have two classrooms, a library, and toilets. Did I say that right? No, we So have in terms of three classrooms, yes, go ahead, Shubham, Shubham. go ahead. we have 3 newly constructed classrooms, and then there is community hall where there are almost 3 rooms. One is being used as an office, other is library, and other is also being used as a classroom. So we So have this 5 go ahead. total classrooms. Yes. Okay. तो मैं भी इधर जहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है मैं जा रहा हूँ इधर। ये रूम्स के पीछे हमारा यहाँ स्टोर रूम है। ये तो स्टोर रूम है इधर।
अच्छा, ये स्टोर रूम है। अच्छा, ये स्टोर रूम है, तो बच्चों ने जो पेंटिंग की है, तो ये पेंटिंग के भी कुछ इधर हैं। ये अच्छा, ये ये वॉल नया पेंटिंग की बना हुई है, तो ये पहले नहीं था ना? ये जैसे कम्युनिटी उसके द्वारा बनाया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और अच्छा अच्छा, तो ठीक ये है। हमने इसको स्टोर बना दिया है। ये कुछ बच्चों तो की इधर इसमें जो स्टोर रूम हमारी में कम्युनिटी आपने क्या रखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर तो जैसे जो भी ऐसी चीजें हैं जो वेस्टेज हैं वो ज्यादा हैं उधर। तो अच्छा, ओके ओके। तो ये बच्चों लाइब्रेरी के, यहाँ पे है? हाँ ये लाइब्रेरी है। देखो लाइब्रेरी वैसे ओपन में नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल इंटरनल आ नहीं सकते थे, तो ये कुछ हमने रैक्स बना रखे हैं। जैसे ये है, ये लिखी हुई है, अभी अभी रैक्स में ही है। ये जैसे तो ये है इधर तो जैसे कुछ लाइब्रेरी में बुक्स हैं किताबें इधर। हैं, किस किस कक्षाओं के लिए है, मतलब ज्यादातर बड़ी कक्षा के लिए, इनको छोटी क्या के है, लिए भी? ये सभी के लिए फ्री से लगा करके अपर तक की हैं बुक्स। तो अच्छा इनको कुछ क्या है, हमने बांट भी रखा है इस तरह से कि भाई ये अपर लेवल की है, तो कुछ कुछ के सिंबल से लगा रखे थे। वो बच्चों को भी पता है ये कुछ कंप्यूटर का है हमारा ये जैसे। और ये लैपटॉप है, एक लैपटॉप और है, ऐसे 2-3 लैपटॉप हैं। तो बच्चे, ये 2-3 लैपटॉप हैं। तो जैसे लैपटॉप में और ये कंप्यूटर पे बच्चे सीखते हैं, और किस उम्र के बच्चे सीखते हैं? ये अपर के ही सीखते हैं ज्यादा, 6-7 के बच्चों को 6-7 सिखाते हैं। के? ये अच्छा स्मार्ट टीवी है। जब अच्छा जब कभी हमें कुछ दिखाना होता है, इंग्लिश पोइम वोइम या कुछ वीडियो दिखाना होता है साइंस से रिलेटेड, तो फिर हम ये स्मार्ट टीवी के थ्रू दिखाते हैं। अच्छा। इधर और ये भी क्लासरूम ही है, लेकिन कोविड के कारण इसको ऐसा सामान है स्टोर जो रखा हुआ है हमारे पास। ये भी एक रूम, ये भी रूम है, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी रखी हुई हैं। अलमारी अलमारी ये। अच्छा, तो कोविड के पहले ये तीनों रूम क्लासरूम की तरह यूज करे जाते थे? हाँ ये इसको ऑफिस बना रखा था। ये 2 क्लासरूम थे, ये एक और ये 2, ये क्लासरूम है। और अच्छा ये बीच वाला ऑफिस बना रखा था। लेकिन अब अच्छा कोविड के कारण क्या हुआ कि क्लास या तो चल नहीं रही, तो इसको हमने स्टोर बना दिया, उसमें बैठने लग गए। ये कुछ सामान ऐसा है जो ऐसा रखा हुआ है हमारे पास। कुछ साइंस अच्छा। का भी है, कुछ ये साइंस का भी फाइल वाइल है, ऐसे कुछ जो सामान जरूरत पड़ती है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये जो कुछ बाहर आर्ट वर्क बनाया है, जैसे दीवारों पे चित्र बनाए हैं बच्चों ने, मतलब आप, मेरे को याद है कि ये एज एक्सरसाइज, मतलब एज साथ में स्कूल के प्रोग्राम में कुछ ऐसा था, उसके बारे में थोड़े बताएंगे? ये पिक्चर वाला, हाँ, बाहर ये जैसे, वाला। ये, हाँ, ये सब। हाँ हाँ, ये एक तरह से आर्ट का काम था बच्चों की। खुद बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन कितनी क्या है, तो उस हिसाब से ये वॉल पेंटिंग बच्चों के थ्रू की गई है। ये जैसे यहाँ ये लोकल हैं, इनके मांडने जैसे नीचे हैं, तो ये एक तरह से ये यहाँ मांडने बनाते हैं लोकल गांव अच्छा में। जब भी कच्चे घरों में बनाते हैं, ये इनको मांडने बोलते हैं ये, है ना। अच्छा। तो तो ये कुछ बच्चों ने बनाए हैं या ये टीचर्स बच्चों ने के भी हैं बनाए? पूरे। अच्छा ये तो नीचे के तो पूरे बच्चों के ही हैं। कुछ यहाँ टीचर्स की भी मदद ली गई है यहाँ तो ऊपर वालों में, पर ये नीचे वाले अच्छा। तो प्रॉपर। और वो उधर मैंने स्टोर रूम में दिखाए, तो वो भी प्रॉपर बच्चों के ही हाँ हैं। सभी सभी बच्चों के हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, मतलब स्कूल रंग बिरंगा लगता है और ये कुछ, सुंदर भी। हाँ ये कुछ फुलवारियाँ ऐसे लगा के फूल वूल हैं। ये कुछ कुछ ये जो बच्चे आई इधर थिंक देख। आर्ट सब्जी। है, हम्म, ये कौन सी कक्षा के बच्चे मिलकर बनाते हैं? सब सारे बच्चे बनाते हैं या बड़े ये बच्चे?
ये बड़े छोटे वैसे सभी बनाते हैं, जो अधिकतर तो बड़े भी बनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जैसे 4th-5th स्टैंडर्ड के हैं, वो उनको भी इच्छा होती है तो वो भी कलर वलर कर लेते हैं इन साइड में। कुछ बाहर आउट जो लाइन है, आउटलाइन तो बड़े बच्चे बना देते हैं, बच्चे अंदर कलर वलर कर लेते हैं, है ना। और इसमें जैसे महिला मीटिंग्स होती हैं तो भी कुछ जैसे गांव की लेडीज भी बनवाई है, जेंट्स भी कुछ कुछ आकर के अपना इसमें लगा देते हैं, भर देते हैं कलर वलर। ये है अभी। तो अभी जैसे यहाँ मेरे को याद है कि आंगन में यहाँ पे सब्जी वगैरह भी कर रहे थे और फूल भी हाँ डाल रहे थे, तो कर आजकल भी करते हैं या हाँ वो ये अभी बंद कर दिया है? अभी इस नहीं, वो तो करते हैं करते हैं। पर अभी कोविड के टाइम में बच्चे अंदर आते नहीं थे, इसलिए जो हमने जो कुकिंग क्लब्स अभी ड्रॉप था, इसके बाद जो किचन गार्डन था वो भी ड्रॉप रहा है, इस कारण से अच्छा। ड्रॉप रहा है। पर लेकिन कुछ फुलवारी, कुछ जैसे यहाँ कद्दू हैं, अभी यहाँ देखिए पंपकिन जिसे बोलते हैं, ये कद्दू है, ये कुछ ये है इधर फूल वूल, इस तरह के तो हैं, लगा रखे हैं ये तो ऐसे। पर किचन गार्डन फिलहाल इस ईयर में तो नहीं हुआ है। ठीक है। There is also a space between 2 classrooms which is basically dedicated for doing kitchen gardening by every class. तो अभी शायद वो नहीं हो पा रहा है स्कूल बंद होने की वजह से, बट पहले शायद करते थे, है ना अशोक जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर ईयर होता था और पूरे साल ही करते थे हम तो, जैसे सीजन के हिसाब से जो से भी करते हैं, तो अधिकतर आयरन वाली सब्जियां, और उसमें विदाउट यूरिया वाली, विदाउट यूरिया नहीं डालते थे ऐसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह करते थे। तो यहाँ भैंस का, यहाँ जो है केटल्स, उनका गोबर लाते थे हम, तो गोबर डलवाते थे, तो बच्चे यहाँ से बच्चे तोड़ के ले जाते थे, जैसे पालक ले लिया, गाजर, मूली, है ना। तो उस हिसाब से जिन बच्चों की बीएमआई थोड़ी लो आ रही है, थिननेस में है, तो उनको ज्यादा हम अप्रोच करते थे कि खाने के लिए, उनकी फैमिली से बात करते थे, फिर वो ले जाते थे और साग सब्जियों में ऐसे यूज करते थे फिर वो उनको। तो उन बच्चों के लिए जैसे आपने फैमिली से बात की, तो आपको ऐसा लगा कि मतलब कि जैसे फैमिली अर्न नहीं कर पा रही है इसलिए मतलब बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है वो, मतलब, या बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं, मतलब ऐसे हैबिट नहीं, बनी हुई है? देखो खाना खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे गांव है तो गांव में दूध दही ये होता है, दूध दही छाछ होता है, तो वो जानते हैं कि इससे इससे बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है, साग सब्जियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको खाया जाए। अच्छा। तो अच्छा। हमने ये कहते थे कि भाई जो जरूरी नहीं है हर चीज दूध में मिले, दही में मिले, सब्जियां भी का भी अपना एक अलग चीज होता है, उनमें भी होता है आयरन वायरन, तो इसकी भी पूर्ति करने के लिए आपको सब्जियां खानी पड़ेंगी। तो फिर हम उनको थोड़ा समझाते थे, तो फिर वो सब्जियां उब्जियां भी बनाते हैं। नहीं तो क्या है, गांव में अधिकतर क्या होते हैं, सब्जी कम बनाते हैं, छाछ राबड़ी दूध दही ऐसे ज्यादा, फिर ज्यादा ज्यादा रात को चटनी सी, इस तरह की चीजें ज्यादा करते हैं यूज वो। अच्छा, ठीक है। मोहित, मेरे साथ पुनियाराम जी भी हैं। नमस्कार पुनियाराम जी गिरिराजपुरा कम्युनिटी से ही हैं, और शुरू से मतलब ये जो पूरा रिलोकेशन का जो पूरा एक संघर्ष रहा है कम्युनिटी का, उसमें ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं। ग्रामीण शिक्षा केंद्र के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं, और 3 साल पहले इन्होंने ग्रामीण शिक्षा केंद्र ज्वाइन किया है एज कम्युनिटी मोबिलाइजर। तो अभी ये हमारे साथ फुल टाइम काम करते हैं, प्लस कम्युनिटी में बहुत ही एक्टिव एक मेंबर हैं। तो अगर इसी तरह का कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पुनियाराम जी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो 1 मिनट में बोलना चाहता हूँ सर। सबसे पहले तो मोहित जी और सुरती जी को धन्यवाद, जो आज आप हमारे गांव को या विद्यालय को आपने देखा और हम पे हम पे मतलब एक नजर डाली। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से, क्योंकि मेरे गांव को रणथंभौर से
विस्थापन करके नया गांव बसाने में हमारी काफी भागदौड़, लगान, मेहनत, कोशिश बहुत ही जुड़ी हुई चीज है। तो नया गांव बसाने के बाद में इतनी खुशी मिली कि कोई मतलब उसका अंत नहीं है। और जो भी लोग संस्थाओं के माध्यम से या कभी भी मुलाकात होती है, जानकारी होती है, तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि संस्था के माध्यम से ही हमारा गांव का नाम हम बचा पाए। क्योंकि वन विभाग ने जो पैकेज मतलब जो तय कर रखा है 10 लाख का, उसमें गांव को छोड़ना होता है, फिर वो कहीं भी जाओ, कहीं भी बसो। पर हमारा ये मकसद नहीं था कि भाई पैसे लें और हम गांव को नाम खत्म कर दें। हमारा मकसद था कि भाई हमारा गांव का नाम रहना चाहिए, हमारा पर्सनल गांव होना चाहिए। तो हमने संस्था के लोगों ने मिलकर 3 साल तक काफी भागदौड़ की, अधिकारियों से बात की, कलेक्टर से बात की, डीएफओ से बात की। तो ज्यादातर उनका एक ही जवाब मिलता था, भाई सरकार जमीन कभी नहीं देगी, आपको पैसा ही लेना पड़ेगा। तो फिर मेरे को सामने आना ही पड़ा। मैंने चैलेंज के साथ ये बोल दिया कि भाई जमीन देगा तो उठूंगा, नहीं तो उठूंगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी जोर लगा लो। तो 2009, 10 और 11 में 125 लोग हमारा साथ छोड़ गए, 10 लाख का पैकेज लेके चल दिए। मतलब मैंने भी उनको समझाया, उन्होंने मेरे को समझाया, सरकार जमीन देगी नहीं, कब तक परेशान होंगे, कब तक पड़े रहेंगे यहाँ। मैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन चाहिए, गांव का नाम चाहिए मेरे को। तब 2012 में गिरिराज सिंह कुशवाहा कलेक्टर थे सवाई माधोपुर के, उनके साथ हमारे संस्था के जो डायरेक्टर थे पहले, मनीष भाई, उनके बीच में बात चली। जब उन्होंने हमको उनसे बातचीत करवाया, तो उसमें सीधा उसने पूछा क्या चाहते हो? मैं कि जमीन। क्या करोगे जमीन का? मैं कि हमको गांव बसाना है, हमारा गांव में हमको जमीन ही चाहिए, हमको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तब जाके ये गिरिराजपुरा गांव बसा। तो आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने हमारे विद्यालय की तरफ नजर डाली। आगे आप कुछ भी पूछ सकते हो। नहीं, हम लोग ग्रामीण शिक्षा केंद्र के साथ काफी टाइम से, आई थिंक 2006 या के टाइम, काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो ये लोग भी मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मतलब आपसे सुन के भी अच्छा लगा कि जैसे सवाई माधोपुर में जितने गांव वाले हैं, उनकी जो स्ट्रगल रही है हमने भी सुना है। तो मतलब अच्छा है कि आपकी विशेष पूरी हुई, मतलब आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई, और कलेक्टर ने आपके मतलब जो चाहिए था वो आपकी मिल गया। बट ये अच्छी बात है कि गांव वाले डटे रहे, मतलब जो उनको चाहिए वो मिल गया। और यहाँ आशा ऑस्टिन में भी सब लोग, हम लोग वॉलंटियर हैं, सब अपना टाइम मतलब अपने जॉब से हट के थोड़ा टाइम बैठ के ये सब चीजें करते हैं। और फिर हम मिल मिल बांट के जैसे फंड्स रेज करते हैं कि हमें इस तरह की चीजें में, जैसे स्कूल स्कूल चलाना है जहाँ पे स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट जहाँ नहीं कर सकती, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जितना मदद कर सकें करें। तो यहाँ आशा ऑस्टिन से श्रुति के अलावा, मेरे अलावा रंगा है, श्रीनिधि है, शुभांगी है, मीनल है, और भी लोग हैं। मतलब 10-15 और लोग हैं जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे रात के 11 बजे हुए हैं। बट हाँ बट अच्छा लगा सबसे मिलके, और आपसे भी मिलके अच्छा लगा। और मतलब अगर जैसे शुभम से तो बात होती रहती है, बट ये अच्छा लगा आज अशोक जी से और आपसे मिलके, और पूरा स्कूल का अच्छा टूर मिल गया। हम लोग आ नहीं पाए, बट कोविड है तो अब टेक्नोलॉजी ऐसी है, तो इट हेल्प्ड इन अस, हमें हमें मदद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपसे मिलने के। नहीं तो कहाँ मिल पाते कोविड में। इसके जरिए हम सबको भी देखने का मौका मिल गया, हम सबको भी ये स्कूल देखने का मौका मिल गया। चलो अभी तो कोविड है, अगर ये महीने में 2 महीने में कभी भी जब बिल्कुल क्लियर हो जाए तब कभी आओ और हमारे गांव में पधारो, गिरिराजपुरा को देखो, हमारे विद्यालय को देखो और हमसे मिलो। आई थिंक 2 साल पहले राजा राम जी आए थे, मेरे को याद है। और उससे पहले नहीद आई थी,
तो हमारे आशा के ही वॉलंटियर्स आए थे मिलने, और उससे पहले आई थिंक आशा, forgetting Ranga, who was our volunteer from Austin. Murli. Murli, yes. Murli. Murli actually started working with Asha Austin, with GSK since 2006. So I don't know, आप लोग मुरली को मिले थे कि नहीं? वो किलोल, मुरली आई थिंक जनवरी में आया था 2014 में, किलोल हुआ था आई थिंक। किलोल था बड़ा। हाँ, तो वो मेरे गांव में था किलोल, 2014 में गिरिराजपुरा में। हाँ, तो उस वक्त आए थे। तो फिर वो जब वापस आए थे वहां से किलोल अटेंड करके, तो उन्होंने बताया था हमें कि गिरिराजपुरा में नया स्कूल शुरू होने वाला है, तो आप लोग देखिए। वो कैलिफोर्निया में है, तो वो पहले ऑस्टिन में थे, फिर कैलिफोर्निया गए, फिर वहां से गिरिराजपुरा उनका चक्कर लगा, तो पता चला कि गिरिराजपुरा स्कूल नया बना है। तो उन्होंने फिर हमें बताया, तो हमारे पास तब फंड्स थे यहाँ पे लोकल चैप्टर में, फिर हमने तब शुरू किया। तो अच्छा, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। और हम यही पूछ रहे थे, और कुछ जैसे स्कूल में कुछ आपको ऐसे लगे कि कुछ कमी है या कुछ चीज और कर सकते हैं, तो आप सबके साथ वो आइडिया शेयर कर सकते हैं। अभी ये मौका है, अच्छा मौका, कुछ अगर जैसे आपको लगे। भाई कभी कभी हमारे साथ में ये होता है कि जैसे गिरिराजपुरा में जो स्कूल चल रहा है उदय पाठशाला का, और आसपास 5 किलोमीटर पर सरकारी स्कूल है 12वीं का। तो जब फंड की कमी हो जाती है, तो कभी कभी हमारे जो टीचर है उनके साथ भी मीटिंग में शेयर करते हैं कि भाई अपने पास अभी फंड नहीं है, तो क्या क्या किया जाए। तो काफी जो अधिकारी आते हैं तो वो बोलते हैं कि यार जरूरी थोड़ी उदय पाठशाला चले, सरकारी में पढ़ाओ। बाकी हमारे जो बच्चे हैं और हमसे पूछे, तो हमारे तो एक ही भावना कि भाई हम तो उदय पाठशाला में ही पढ़ेंगे। कारण इसमें कारण ये है कि मैं खुद, मेरे फादर के इकलौता बेटा हूँ, और काफी भैंस मवेशी का काम किया, पशुओं का दूध बेचना का सब कुछ किया मैंने। मैं 10वीं तक पढ़ा था, सरकारी स्कूल में पढ़ा था। घरने पढ़ने का हमारा मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे पशु ज्यादा थे। उस वक्त मेरे पिताजी बीमार हो गए, तो मैं रात में भैंस चराता, दिन में भी काम करता, गेहूं की रखवाली करता, तो घरने कभी पढ़ने का मतलब किताब उठाया ही नहीं। तो 10वीं में जाके मैं फेल हो गया। मैंने किताब फेल हो गया के बाद में मैंने छोड़ दी पढ़ाई, क्योंकि पीछे काम करने वाला कोई नहीं था। जबकि मन में ये इच्छा थी कि और पढ़े, और पिताजी हमारे अनपढ़ थे, तो उन्होंने ये तो बोला कि बेटा पढ़, और आगे की जो मार्गदर्शन किया जाता है बच्चे का, वो नहीं था उनके पास। तो उस मार्गदर्शन की वजह से मैं छूट गया और दूध बेचना शुरू हो गया। तो ये उदय पाठशाला की बात मेरी जिंदगी के अनुसार ही निकल के आई है। जो हमारे सचिन जी है, जोशना जी है, पहले जंगल पे काम करते थे मोडुमरी में 10 साल तक। 10 साल का काम करने के बाद में वो छोड़ गए और चल गए, तो इलाहाबाद में पता नहीं कहाँ निकल गए वो। 3 साल के बाद में वापस आए मिलने के लिए, तो हमारे फादर से मिले वो। तो हमारे फादर के कुछ नाराजी थी कि भाई खां तो अपन रोज मिलते थे, खां आज 3 साल में आया, तो हमने आपका ऐसा क्या किया जो मिलने से ही दूर हो गए। तो जब आमने सामने हुए, अपनी बाहों लंबी की बात, मतलब मिलने के लिए, तो हमारे फादर ने मुंह फेर लिया। तो सचिन जी समझ गए कि यार बाबा नाराज है। फिर मिले, दोनों रोए बैठे। तब सचिन जी ने पूछा कि बाबा इतनी नाराजगी कैसे आई। तो बाबा ने बताया कि सर अपन खा तो रोज मिलते थे, अब तू ऊंट की तरह लात देखे गया, 3 साल में आया, तो हमने आपका ऐसा क्या किया जो मिलने से गए। सचिन जी बोले बाबा हमारी नौकरी है, आज यहाँ है कल और जगह है। तो भाई नौकरी करनी तो दोस्ती क्यों की, और दोस्ती की तो ऐसा काम करो जो 12 महीना में एक दिन तो मिले। तब सचिन जी ने कहा कि बाबा आप जो कहोगे वही करेंगे हम। तब हमारे फादर ने डिमांड रखी कि इसी करो, जंगल वंगल को छोड़ो और स्कूल खोलो, और इसी स्कूल खोलो जिसमें बढ़िया पढ़ाई हो और फ्री में पढ़ाई हो। तो सचिन जी ने बोला कि बाबा स्कूल तो आपके गांव में सरकारी है। तब बाबा ने उदाहरण दिया कि भाई मेरा एक ही बेटा था, और मैंने बोला था बेटे से कि भाई बेटा पढ़। बेटा बोदल पढ़ा, छाण पढ़ा, बेरावंडा पढ़ा, और 10वीं में फेल हो गया, और वो दूध बेच रहा है। और आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, और आपका बच्चा फिर दिल्ली में पढ़ेगा, वो भी नौकरी करेगा। तो ये नौकरी करना आपकी खातिरदारी हो गया क्या, हम जिंदगी और भैंस चराएंगे। तब जाके ये ग्रामीण शिक्षा केंद्र की शुरुआत की कि भाई बाबा ने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि सरकारियों में पढ़ाई तो होती है, और गांव के बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो दोबारा टीचर से नहीं पूछते हैं, और पूछते हैं तो रेपट रेपट डाल देते हैं टीचर।
अपनी जो स्कूल है उसमें ये बढ़िया लगा मेरे को, एक बच्चा 10 बार पूछ सकता है टीचर से कि सर मेरे ये समझ में नहीं आया। सरकारी में नहीं पूछेगा, एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा तो रेपट पड़ जाएगी उसकी। तो रेपट के डर से वो बच्चा हिम्मत ही नहीं करता कि मैं सर से 4 पूछूंगा, मेरे ये समझ में नहीं आया। और यही कारण है गाँव में ज्यादातर 10वीं फेल होना है, क्योंकि नींव कच्ची है तो वो 10वीं में जाके फेल हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है। अब हमारी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आमले स्टेशन पे जो गांव बसा था वो बिल्कुल नया था, लोग भी नए थे। तो हमारी जो 5वीं के 8 बच्चे थे वो आमले स्कूल में बोर्ड की परीक्षा देने के लिए गए। पहली बार गए, वहां के टीचरों ने पूछा कि ये बच्चे कहाँ पे, कि गिरिराजपुरा के हैं सर। तो जो पेपर का जो समय था वो 2.5 घंटे का था। हमारे 8 ही बच्चों ने 1.25 घंटे में पूरी कॉपी राइट करके और उन टीचरों को कॉपी थमा दिया था। तब HM जो प्रिंसिपल था उसने, उसकी आंखें खुली कि यार ये बच्चे कैसे हैं जो 1.25 घंटे में पूरा प्रश्न सही, कि सर ये संस्था का है, गिरिराजपुरा से है। वो बात आमली गांव में पूरा में फैल गई। तो आमली के लोगों ने मेरे से बात कही, यार हमारे बच्चों को पढ़ा लेंगे। मैं कहा हो, पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पढ़ाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसके बाद में से गांव में अफवाह फैलने के बाद कम से कम 60 बच्चे 5 गांवों में से आते हैं, और 60 ही हमारे गांव के बच्चे हैं। 120 बच्चे अपनी संस्था में पढ़ते हैं। उसके बाद में एक बार मैं संस्था की तरफ से जो कैलेंडर दिया था उसको मैं प्रिंसिपल को देने के लिए आमली गया। तो उससे मेरी काफी बात हुई, तो मैंने काफी चीज बताई। उन्होंने मेरे से बोला यार भाई साहब आया करो और हमको जोड़ो विस्तार से। मैं सर हमारा संस्था काम सवाई माधोपुर जिले में है, अपन टोंक में है, तो अभी हम नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी मदद हो तो हम बीच बीच में आ सकते हैं आपके पास। तो वहां के लोगों में काफी चर्चा हुई कि यार ये स्कूल किसी है, सारा दिन खिलावे पढ़ावे कौन, जबकि हमारे बच्चों का खेलने का जो पीरियड है वो तो टाइम टेबल फिक्स है। और ये लोग देखते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारा मास्टर कैसे है, सारा दिन खिलाते हैं पढ़ाते ही नहीं। फिर मैंने उनको समझाया भाई हमारा टाइम टेबल है, आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा बाहर खेलेंगे। तुमको तो हमेशा ही दिखते हैं वे खेलते रहते हैं, बाकी वे खेल खेल में पढ़ना सीख जाते हैं। हाँ नहीं, ये तो बात तो बढ़िया है। मतलब जो गिरिराजपुरा का स्कूल है एक तरह से अपना नाम रोशन कर रहा है और सबके लिए एक तरह से बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ जी। पर ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल वाले सीख रहे हैं आपसे। तो ये बदलाव आई थिंक आपके मतलब जैसे आसपास वाले गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर लाएं तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर जैसे अब गवर्नमेंट के पास फंड्स ही फंड्स हैं, उनके पास पैसा खूब आता है। हम लोग यहाँ पे पैसा जोड़ के मतलब भेज रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं। कल को मतलब ये तो एक एग्जांपल, जैसे आई थिंक शुभम भी यही मतलब ऐसे ही बात हो रही थी उनसे कि ऐसा मतलब ये एक तरह से आपका एक मॉडल स्कूल हो गया या एग्जांपल स्कूल हो गया, जो कि वो आपको देख के मतलब ऐसे होता है ना कि अंधेरे में एक रोशनी है, उस तरह से है। तो वो बन के चलिए, आप लीडर हैं यहाँ के, मतलब मोबिलाइजर हैं, और दिखाइए लोगों को कि किस तरह से स्कूल चलता है। वो आपसे सीखेंगे, तो वही परिवर्तन जो आपने यहाँ पे किया है वही आसपास के अगर गवर्नमेंट स्कूल में करेंगे तो और बच्चे उससे और बढ़िया पढ़ेंगे और सारे के सारे बच्चों का होएगा। तो सबको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल जितने भी आप आसपास हैं, सवाई माधोपुर में भी हर जगह, मतलब टोंक और आमली में है, सब जगह आप अगर अपना चमत्कार दिखाएं तो सबके लिए मतलब बड़ा अच्छा रहेगा। वो ठीक है सर, बड़ा हमारे जैसे बोदल में स्टीम लैब है, स्टीम लैब के लसड़ा बेल्ट के 20 गांव मेरे को दे रखा है SMG जागरूक करने के लिए। तो मैं गाँव में गया, पहली बार जब शुरुआत की तो मेरे भी शर्म सुकत झिझक थी, तो मैं कम करता था बात। और धीरे 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 मेरी स्पीड बढ़ी। तो हमें हमारा जो विस्तार टीचर था बालकिशन जी, हम साथ साथ स्कूल में भी जाते थे। तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ चेतना गीत, बाल गीत जब हम गाते थे तो कई टीचर मतलब गा नहीं पाते हैं सरकारी, कोई कोई टीचर तो गाता है पर हमारी तरह हर कोई नहीं गाता है। तो वो बच्चे इतने खुश है हमसे, आज भी अगर रास्ते में मिल जाए हमको बच्चे तो देखते हैं पहले दूर से चिल्लाते हैं सर जी आ गया, सर जी आ गया, सब लिपट जाएंगे हमारे। तो सरकारी मास्टर ने हमसे भी बात की कि यार ऐसा क्या तुम, मैं हमारे पास कुछ नहीं है,
केवल चेतना गीत है, बाल गीत है, प्यार है। बच्चों से प्यार से बात करो तो सब बच्चे भक्त आ जाएंगे। अब तुमसे डरे उनको, क्योंकि तुम मारते हो उनको। कोई बच्चा अगर छेड़छाड़ कर रहा है तो रैपट खींचते हो, हम नहीं खींचते हैं, उसको समझाते हैं बेटा ऐसे है मत कर। ये फर्क है आप में और हम में। बाकी आप सरकारी हो, हमसे ऊपर हो, सीट भी ऊपर है, आपकी डिग्री भी ऊपर है, हमारे पास तो डिग्री नहीं है। पर हमने तो ये सोच रखा भाई अपन रह जाए बहुत है पीछे। अब जितना भी बच्चों के लिए सहयोग हो सकता है उतना करो, हमारा तो ये मकसद है भाई। तो वे टीचर भी फिर बाद में ये बोलता है कि आया करो यार। अब हम मेरे को फोरम थिएटर का काम दे दिया यहाँ, तो 12 महीना से मैं नहीं जा रहा हूँ स्कूल में। अब हम फोरम थिएटर जो नाटक हमने बनाया बाल विवाह और बालिका शिक्षा पर, उसको गांव में जाके करते हैं हम। तो वो टीचर कहीं भी रास्ते में मिलते हैं तो वो हर टीचर बोलता है मेरे को, यार अब तो आते ही नहीं हो तुम। मैं सर हमने चेंज कर दिया काम। अब हाँ, आज स्कूल में भी आएंगे आने को, तो स्कूल में भी करते हैं हम और वहाँ भी करते हैं। बट जो जो मोहित जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इवन गिरिराजपुरा ने 2 चीज़ों में उस पूरे एरिया में एग्जाम्पल सेट किया है कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और कम्युनिटी की मदद से कैसे एक क्वालिटी एजुकेशन का मॉडल सेटअप किया जा सकता है सरकारी स्कूलों में भी। दूसरा, ये जो फाइटिंग स्पिरिट है इनकी, जो पिछले 10 साल से अपनी ज़मीन के लिए, अपने विस्थापन के राइट्स के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो आसपास जितनी भी कम्युनिटीज अब विस्थापित हो रही हैं, रिहेबिलिटेट हो रही हैं, वो लोग भी फिर गिरिराजपुरा की ये जो मूवमेंट है इनका कि लगातार सरकार के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर डालना कि हमें हमारा राइट चाहिए, तो उस चीज़ में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। अगर गिरिराजपुरा इस प्रोसेस को लीड नहीं करता तो शायद वो भी इस प्रोसेस में कभी शामिल नहीं हो पाते। तो इस तरह से गिरिराजपुरा एक, मुझे लगता है कि उस एरिया के लिए खुद में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल बन चुका है इन दोनों चीज़ों, इन दोनों इम्पोर्टेंट इश्यूज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे काफी Yeah, I have one question, Shubham. You know, Punyram ji, धन्यवाद like for sharing all your thoughts. You know, 8th के बाद you were planning to have 9th and 10th, right? So that was one question. And in general, I'm interested just as in the region what's happening, right? So how long do the girls study till what age? And typically, when do they get married in this region? Like, I'm just trying to see what's the dropout rate of girls, and after 8th, what do they do? Because the purpose was right now this school is serving the community and there's the nearest one is 5 kilometers away, right? So 9th and 10th, what happens? And after that, what do they do? And how much further do they study, and do they get to undergraduate studies and things like that? अशोक जी, आप बताएंगे लड़कियां, हमारी जो स्कूल की लड़कियां हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, पढ़ाई कहाँ तक कर रही हैं? आप म्यूट हैं अशोक जी। अभी हमारे यहाँ से जो पास आउट हैं वो 11th क्लास में है फिलहाल। ड्रॉप आउट नहीं है यहाँ से कोई भी अभी फिलहाल, अपने यहाँ से तो कोई भी ड्रॉप आउट नहीं है। तो जैसे गिरिराजपुरा स्कूल में 8वीं कक्षा तक हैं पढ़ते, तो उसके बाद फिर कहाँ बच्चे पढ़ते, लड़कियाँ कहाँ जाती? ये आमली स्टेशन है पास में ही। आमली गांव थोड़ा दूर है। आमली स्टेशन पर भी प्राइवेट स्कूल है सीनियर तक, तो यहाँ है। फिर उसके बाद में ये सवाई माधोपुर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उदय स्कूल का गिरिराजपुरा में कि जब ये गांव विस्थापित हुआ था, रिलोकेट हुआ था, तो उस समय लड़कियों का जो रिटेंशन था बहुत कम था स्कूल्स में। इवन आई थिंक कोई भी लड़की शायद उस टाइम पे 8वीं पास आउट भी नहीं हुई है ना। तो इस स्कूल के होने से एक तो वो कंटिन्यूटी मिली, उनको रिटेंशन मिला है स्कूल में, और वो जो एक पूरा जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है एजुकेशन को लेके, उसकी हेल्प से अब लड़कियां आगे तक जा रही हैं जिस तरह से लड़के आगे तक जाते हैं। तो जो अशोक जी कह रहे हैं कि लड़कियां 12th भी कर रही हैं और उसके आगे हायर स्टडीज के लिए भी जा रही हैं सवाई माधोपुर। उसमें ये हुआ, मेरे गांव से 4 लड़की थी, उनमें एक लड़की मेरी भी है। गांव से जब विस्थापित हुए, जब 5वीं पास करके आई थी, 12 महीना वो कहीं भी नहीं गई, पढ़ाई छोड़ चुकी थी। तो आमली स्टेशन पे जो प्राइवेट जो स्कूल है, उनके टीचर से किसी ने मेरा नाम बोल दिया कि आप उनसे मिलो, उनसे जाके मिलो पुण्यराम जी से, तो वो काफी बच्चे जोड़ देंगे आपके पास। तो वो टीचर मेरे पास आए, तो मैंने उनको पहले तो उन लड़कियों का ऑफर बताया। मैं क्या 5वीं पास तो कर ली उनने, पर 12 महीना से वो कहीं नहीं जा रही, आप 6वीं में अगर एडमिशन ले लोगे तो मैं उनको जोड़ दूंगा। उन्होंने हाँ भर ली। तो मैंने उनके घर वालों से बात करी, जो लड़कियों की दादी है
उस दादियों ने मना कर दिया मेरे से कि जमाना खराब है, हम तो नहीं भेजेंगे। मैंने लड़कियों को अलग से मेरे कमरे में बिठा के उनसे बात की, मैं कि आपके लिए बढ़िया मौका, पढ़ने जाओ, मेरे नंबर नोट करो, कोई भी रास्ते में परेशान करे मेरे को फोन करना, तुरंत मैं आऊंगा, कोई टच नहीं कर सकता तुमको। इस तरह की बात करने के बाद लड़की तैयार हो गई। फिर उन्होंने बोला कि हमारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी, मैं करूंगा। तो जिन घर वालों से मैंने बात की उन्होंने कहा आपकी बच्ची में सबसे पहले मेरी जाएगी, आप भी भेजो, 4 हो जाएंगी, 4 पैदल पैदल चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशान करेगा मैं हूँ। टीचरों से मैं कह के आया मैं भाई कक्षा में कोई मतलब किसी भी तरह की हरकत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो टीचरों ने फुल गारंटी दी मेरे को। आज वो लड़कियां 11वीं में है, 10वीं का जब एग्जाम दिया तो 2 लड़की पास हो गई, 2 लड़की फेल हो गई, सप्लीमेंट्री आ गई थी मतलब। तो उस सप्लीमेंट्री में मेरी लड़की भी थी, तो वो एक हताश हो गई, वो रोने लग गई थी मेरी लड़की कि मैंने काफी पढ़ाई की फिर भी मैं सप्लीमेंट्री आई। मैं की टेंशन नहीं, 20 दिन का और मौका आपके लिए, अशोक जी को मैं बोल दूंगा, वो भी ट्यूशन पढ़ा देगा और तुम्हारा टीचर भी तैयार है पढ़ाने को। तो 20 दिन बाद में आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा लगेगी, हो सके आप पास हो जाओ, नहीं तो आज सप्लीमेंट्री तुम हुआ है ऐसे मैं भी हुआ था, पर मेरे को तो मौका मिला ही नहीं आगे बढ़ने का। तुमको मौका दे रहा हूँ मैं, अशोक जी पढ़ाएंगे, आपके टीचर पढ़ाएंगे। तो उनको ट्यूशन अशोक जी ने पढ़ाया, उनके टीचरों ने पढ़ाया, फिर मैं खुद ही उनको बजरिया लेके गया परीक्षा देने के लिए, और वो दोनों ही पास हो गई। फिर टीचर मेरे पास आया कि सर अब 11वीं में जोड़ देते हैं इनको, मैं जोड़ दो। 11वीं में फिर जोड़ दिया, अभी कोरोना आ गया इसलिए वो पास तो हो जाएंगी। तो उनको मैं 12वीं में भी पहुंचाऊंगा। मैंने उनसे बात की भाई अगर 11वीं तो आप प्रमोट हो ही रहे हो, 12वीं में भी जाओ, फेल होंगे पास होंगे वो टाइम बताएगा। तो उन लड़कियों को बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पहुंचाया मैंने। मेरे को भी आश नहीं थी कि आगे बढ़ जाएंगी, घर वाले तैयार नहीं थे। पर अब धीरे धीरे उन लड़कियों को देख के, पीछे की लड़की 8वीं तक तो गिरिराजपुरा में है ही, बाकी 9वीं में जब जाएगी तो कोई रोकने वाला नहीं है उनको, घर वालों से भी नहीं रुकेगी और पढ़ने में पीछे भी नहीं रहेगी। इतनी इंटेलिजेंट अभी 8वीं में जो पढ़ रही लड़की। तो आप घर वालों से सब बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है वो गांव में? हाँ। ओके। तो ऐसा कहीं हो रहा है कि जैसे मतलब जल्दी शादी हो जाए, ये भी सवाल था मतलब। वो सारे गांव में होता है ज्यादातर, पर जैसे मेरी है, मेरी लड़की है, वो 17 साल की है अभी, तो मैंने अभी तक सगाई नहीं की, क्योंकि अगर जल्दी सगाई करेंगे तो शादी के लिए बार बार टोचन करेंगे। तो काफी जो मेरी समाज के लोग हैं वो मेरे को बोलते हैं यार, काफी जगह मेरी मतलब बातचीत भी चल रही है। मैंने सबको मना कर दिया, मैं जब तक 18 साल की नहीं होगी लड़की, जब तक मैं सगाई भी नहीं करूंगा, और 18 के होने के बाद में सगाई शादी बाद में करूंगा, पहले नहीं करूंगा। तो वो लड़कियां पढ़ रही है, उनकी भी नहीं हो रही अभी तक, वे सब मेरी इंतजार में, यार तू कब करोगे? मैं 18 में करूंगा, पहले नहीं करूँ सगाई। आप तो लीडर हैं। करेगा। बोलिए। तो अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की। बाकी जो मेरे जानकार है, परिचित है, रिश्तेदार है, वे काफी कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास रोज फोन आते हैं, यार आपकी बच्ची ब्याह वाली होगी, आमी होगी साहब, मेरे को मालूम है, पर मैं इस साल नहीं करूंगा, अगले साल आपसे बातचीत करूंगा। ऐसे मैंने उनको सबको रोक रखा है। तो गांव की जो लड़की और भी है उनके साथ पढ़ती है, उन्हीं की भी शादी नहीं है अभी। सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि यार आप करेगा जब हम देख लेंगे, मैं तो 18 में करूँ, पहले नहीं करूँ। क्योंकि मेरे भी दिमाग में इसलिए आई कि भाई बाल विवाह पे जो मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को जो जाके गांव में समझा रहा हूँ, अगर मैं ही बाल विवाह करूँ तो गलत बात है। तो मैंने मकसद बना लिया भाई मैं 18 के बिना नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ, बाल विवाह भी नहीं, लाइक जल्दी शादी होने से और उनकी एजुकेशन तो रुक जाएगा। हाँ, एजुकेशन में दिक्कत होती है। इतने पढ़कर लाइक अगर स्टॉप किया तो फिर लाइक फिर नौकरी वो सब के लिए लाइक फिर दिक्कत होगी। ग्रेट। सो अभी यहाँ पे 11:15 हो गए हैं। I think Ranga, do you have any other questions? I think this was, I was curious about this because I don't know if Shubham is aware of Navjyoti and have they connected, because even they are doing similar with adults and girls and also self-help groups and stuff, right? So I don't know if there's some cross-pollination of ideas there. I think that's about it. I think this was I was curious because I had I went to Pilani to study, so I was in Rajasthan for 4 years, so just interested in the region and how they have which organization are you talking about, Ranga?
BITS No, Pilani. He I went studied to in college. Pilani. 4 years I was there, 99 to 2003. So I've been in Rajasthan for 4 years and just curious about how the communities think and even like it's a big problem, right? So girls' education, and then they say the first thing that you do is educate the girl, and you know everything fits in place, right? So that's the best That's solution right. for everything, all the problems. No, I was just telling Mohit a couple of days ago that we have also started a dedicated program for the adolescent girls in the area with two major objectives. One is to help them continuing their education beyond class 12, and second is to help them realizing their agency. That and as you are absolutely right that the patriarchal norms are very much prevalent in Rajasthan. So how do they break those barriers? How do they make their own choices based on the information that they have? And how do they kind of free themselves from all the kind of patriarchal and social barriers which are there in the society? So so this program is called Umang program. We have also written a proposal and submitted to the Silicon Valley chapter of Asha for Education very recently. And right now, so we have worked with 2 batches of girls, 30 each, and we have seen tremendous results of this program. It's a 2 years program, and all of the girls from these 2 cohorts are continuing their education, even in class 12 also. Yeah, I'd asked Shubham to send me the copy of that proposal submission. So Sure, I will. Just हमारे साथ हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हैं विष्णु गोपाल। विष्णु जी एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो सब लोग देख लेंगे आपको। हाँ, ठीक है। नमस्ते पुनियाराम जी। धन्यवाद पुनियाराम जी। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी। तो विष्णु जी बेसिकली जो भी हमारा पूरा एकेडमिक्स है, टीचर्स की ट्रेनिंग, एकेडमिक करिकुलम में जो भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं या जो क्वालिटी किस तरह से हम मेंटेन कर पाए उदय स्कूल्स में, तो वो उसको लीड करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। विष्णु जी, तो आप अभी ऑफिस में है या कहीं स्कूल में है, थोड़ा बताइए। जी मैं ऑफिस पे ही हूँ अभी। अच्छा, ओके। तो जैसे करिकुलम जैसे आप बनाते हैं तो टीचर्स के साथ बैठ के बनाते हैं, किस तरह से करते हैं? यस, हम लोग जैसे मेरे पास कुछ आइडियाज होते हैं तो हम लोग फील्ड विजिट करते हैं। और मैं भी एक टीचर ही हूँ, मैंने लगभग 10 साल क्लासरूम प्रैक्टिस की है, उसके बाद फिर मैं दूसरे रोल्स में गया हूँ। तो हम लोग कलेक्टिव अप्रोच ही लेते हैं। तो जो हमारा विजन मिशन है, तो एक बार हम जो भी हमारे क्वालिटी एजुकेशन की जो भी पैरामीटर्स हैं कि क्वालिटी का मतलब ये होता है, तो उनको फुलफिल करने के लिए फिर करिकुलम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, कंटेंट कैसे होंगे, मटेरियल कैसा होगा, ये सब उस ऑब्जेक्टिव से डिसाइड होता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी फिर उसी ऑब्जेक्टिव से आता है कि अगर हम ये कहते हैं कि हर बच्चा अपने पेस पे सीखता है, हर बच्चा अलग होता है उसकी, तो फिर ये समझ में आ जाता है कि हर बच्चे, ये पूरी क्लास को एक तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर सबका डिफरेंट लर्निंग अप्रोच है, सबका अपना लर्निंग पेस है, तो फिर एक टीचर एक ही मेथड से पूरी क्लास को एक ही टाइम पे एक ही कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकता। तो फिर हम यहाँ से फिर मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल पे चले जाते हैं और फिर इंडिविजुअल प्लानिंग करते हैं कि बच्चे की, ठीक है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या पेस है, उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चे अपने अपने पेस पे चलते हैं। तो करिकुलम में भी फिर हम, लेकिन जब करिकुलम की बात आती है तो ये हो जाता है कि भाई एक मिनिमम टाइम सेट करना होता है कि अगर आप प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतने टाइम में प्राइमरी एजुकेशन हो जानी चाहिए सबकी। अगर इससे कम होती है तो फिर आगे शायद उसकी हायर एजुकेशन में एज फैक्टर काम करने लगे, उसके ड्रॉप आउट्स के चांस हो जाए, शायद एडमिशन ना मिले लोग, या फिर उसका एज जिन क्लासेस में जाएगा तो लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया है, इस क्लास में क्यों है। तो वो हम मैनेज करने के लिए थोड़ा फिर अगर हमको एडिशनल सपोर्ट देना पड़े, एक्स्ट्रा क्लासेस करने पड़े या घर पे जाके कुछ उसको मोटिवेट करना पड़े, तो वो टीचर
अपने क्लासरूम प्रैक्टिसेस में कर देता है कि ठीक है इसको मैं 2 मिनट ज़्यादा दूंगा बाकी बच्चों से, तो वो हम फिर एक लॉन्ग टर्म में जाकर के उसको पूरा करते हैं। ऐसे नहीं कि इमीडिएट ही पूरा करें उसको। इमीडिएट पूरा करने से जो प्रेशर बिल्ड होता है, जो किसी भी स्कूल में होता है कि अच्छा ये तो बहुत कमजोर बच्चा है, इसको मारो या इसको पनिशमेंट दो या इसके पेरेंट्स को बुलाओ, आपका बच्चा बहुत पुअर है, पढ़ता नहीं है। तो मुझे लग रहा है इनिशियल स्टेज में ये सब नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ में। तो हम उसमें अगर वो स्लो भी चल रहा है तो टाइम देते हैं ताकि वो एक सेल्फ लर्नर बने, एक ऑटोनोमस लर्नर बने, ताकि अगर वो एक बार पेस पकड़ा तो फिर हमने देखा है कि बच्चे कवर कर जाते हैं अगर वो स्लो भी चल रहे हैं, और आगे उनका पेस बढ़ता है। और क्योंकि एजुकेशन इज मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये आपको 20-25 साल पढ़ना है, तो इसमें पेस मतलब लहरों की तरह रहेगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं करना कि बस वो कंटिन्यूटी बनी रहे उनका एजुकेशन का, ये बड़ी चीज होती है। फेल होना भी हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मतलब पर्सनली मेरे से पूछें तो मैं फेल होने को गलत नहीं मानता। ठीक है, आप बिना सीखे आगे बढ़ जाए ये मेरे लिए गलत होगा। तो जैसे अभी कोविड से पहले सब जैसे नॉर्मल चल रहा था, तो एकदम कोविड हिट हुआ, तो मतलब आपका फर्स्ट ये रिएक्शंस क्या थे कि मतलब अभी क्या करेंगे? मतलब ये आइडियाज जो छोटे छोटे मिनी स्कूल्स जैसे बनाए, वो जी। एकदम से आइडिया आया या धीरे धीरे नहीं, बात करके? एकदम नहीं आया। एकदम तो जैसे इंफॉर्मेशन फैली तो हम भी दहशत में ही आ गए थे और चौक हो गए थे एकदम। तो हमने भी छुट्टियां अनाउंस कर दी थी कि जाइए अब आप अपने घर जाइए, सेफ रहिए, जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है वो पूरा कीजिए। बच्चों को भी हमने स्कूल लॉक्स कर दिए थे हमने। बट टीचर्स को हमने कुछ होमवर्क दे दिए थे कि भाई हम फोन के जरिए मिलते रहेंगे, मीटिंग्स करेंगे और अपनी सेल्फ कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे और नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे, इस साल को रिव्यू करेंगे। तो इतना सा प्लान जरूर हमने 1 महीने 20 दिन का कर लिया था कि जितना डेडलाइन दिया था भारत सरकार ने कि 20 दिन का लॉकडाउन है। लेकिन जब वो एक्सटेंड होने लगा कि फिर बढ़ा दिया 15 दिन, तब फिर हमने सोचना शुरू किया कि ऐसा कब तक चलेगा। तो फिर हमने शुरू में कोशिश की कि जैसे पूरी दुनिया कर रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस करें, जूम मीटिंग्स करें, बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट डिलीवर करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उनके फ़ोन नंबर कलेक्ट करें घर पे जा जाके। तो शुरुआत में हमने टीम को फील्ड पे भेजा कि आप बड़ा केयरफुली जाइए वहाँ पे और सबसे कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उनका ग्रुप्स बनाइए, ऑनलाइन टीचिंग हम लोग करेंगे। बट 1 महीने में हमें ये समझ में आ गया था कि ये काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे बच्चे ऑफलाइन टीचिंग में ही ज़्यादा कंफर्ट हैं और इस तरह की फैसिलिटीज़ भी वहाँ नहीं थी, नेटवर्क इशू था और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि पेरेंट्स कहते कि ये वीडियो गेम खेलता है और पूरे घर में एक ही मोबाइल फ़ोन था। तो अमूमन वो हेड ऑफ द फैमिली के पास होता है, वो किसी को शेयर नहीं करते। तो बच्चे हैं तो उन पे ट्रस्ट नहीं होता फ़ोन को लेके। फिर इंटरनेट रिचार्ज का भी इशू था। तो ऐसे करके हमने देखा कि मुश्किल से 5% बच्चे थे जिनको हम वो कंटेंट डिलीवर कर पा रहे थे, मैक्सिमम 10%। लेकिन जब हम वहां जाके फॉलो अप लेते थे कि कंटेंट तो हमने डिलीवर किया पर रेस्पॉन्ड किसने किया, तो वो फिर 5% पे ही जाकर के ठहरा था कि 5% बच्चे हैं जो उस कंटेंट को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लर्निंग अभी हमें भी नहीं पता चल रही थी कि उन 5% में भी लर्निंग असेसमेंट क्या कह रहा है उनका। तो फिर हमने फिर ये वाला कहा कि ये नहीं काम करेगा और कोरोना के हिसाब से स्कूल खोल नहीं सकते, तो क्या करें। तो फिर हमारा सॉल्यूशन हमारी पेडागोगी में ही था कि हम तो मल्टी लेवल मल्टी ग्रेड की बात करते हैं कि बच्चों को अपने पेस पे सीखने की बात करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। तो हमें समझ में और चूंकि जब हम मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब हमको जिस तरह का टीचर रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसे टीचर की जरूरत नहीं होती कि जो एक सब्जेक्ट पढ़ा सके। क्योंकि अगर आपकी क्लास में डिफरेंट लेवल्स के बच्चे हैं और डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो इसका मतलब टीचर को एक ही टाइम पे कई सारे टास्क करने पड़ेंगे अलग अलग बच्चों के साथ। तो इसका मतलब हमारे टीचर्स में वो एबिलिटी है कि वो सिंगल टीचर क्लासरूम मॉडल पे काम कर सकता है पूरे दिन भर। तो ये इस वाली अप्रोच जो हम शुरू से लेकर इसी को हमने अपना स्ट्रेंथ माना और फिर हमने कहा कि हर टीचर को एक फुल डे क्लास दे दो। गांव में कहीं भी जाकर के कॉलोनी के किसी एक कॉर्नर में जहां भी 10 बच्चे मिल जाएंगे,
उन 10 चाहे वो 10 बच्चे किसी भी क्लास के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, मतलब एटलीस्ट 1 to 5th स्टैंडर्ड तक तो हमारे टीचर कैपेबल है कि वो सारे सब्जेक्ट सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उसी अप्रोच को फिर हमने 10 बच्चों पे एक टीचर की व्यवस्था करी कि आप स्कूल से बाहर गांव में कांटेक्ट कीजिए, एक बार पेरेंट्स से बात कीजिए क्या वो कॉन्फिडेंट है। और इस तरह की डिमांड भी आ रही थी कम्युनिटी से कि मार साहब आप तो आ जाइए, हम सारी सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे, आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे, कानून से भी हम लड़ लेंगे और हमारे गांव में किसी भी तरह का कोई रेड वेड नहीं पड़ेगी, आप पढ़ाइए, कोई इशू नहीं है और हमें किसी तरह का डर नहीं है। तब हमने हमारे टीचर्स के ट्रेवल बंद कर दिए और उनको रेजिडेंशियली बोला कि आप गांव में रहिए, आप अप डाउन नहीं करेंगे। और फिर इस तरह से फिर हमने स्टार्ट कर दिए, सब सेंटर्स बना दिए। और फिर जैसे जैसे फिर लॉकडाउन थोड़ा सा कमजोर हुआ, सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम किए, तो हमने थोड़ा फिर अपने टीचर्स को मोबिलाइज करना शुरू किया, इधर उधर भेजना शुरू किया और जो क्वालिटी थी उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की, जिसमें कि राजपुरा में ये स्कूल बेसिस पे डिसाइड हुआ कि जो सब्जेक्ट टीचर है 6, 7, 8 में, वो शायद कोई भी टीचर उतना कैपेबल नहीं है। तो जैसे लोकेश जी थे, और तो लोकेश जी और अशोक जी ने मिलकर के रोटेशनल मोड में जाना शुरू किया कि ठीक है जो बाकी सेंटर्स हैं उनके बीच में आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, ताकि वो दोनों टीचर एक्सचेंज हो सके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए। तो इस तरह के स्कूल वाइज भी हमने चेंजेस किए, बट हमने मैनेज कर लिया। पर आप ये कहेंगे कि जो बात स्कूल के जरिए हो सकती है वो सब सेंटर्स पे नहीं हो सकती कि सारी फैसिलिटीज हम वहाँ प्रोवाइड करवा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिटिंग अरेंजमेंट है। तो आपने देखा होगा अशोक जी जो गांव में जो सेंटर्स दिखाए थे वो बिल्कुल स्लम्स टाइप थे, ऊपर रूफ नहीं थी, वहाँ पे भैंसें बनती हैं उस जगह पे, जब बच्चे नहीं होते तो वहाँ भैंसें बैठती हैं। तो उस तरह की चीजें हैं। तो ये सारे इशू थे। और फिर जैसे जो खास तौर से हमको जो ज़्यादा नुकसान हुआ, स्पोर्ट्स में हमें ज़्यादा नुकसान हुआ कि स्पोर्ट्स में इंटरेक्शन होता है, रशिंग पुशिंग होती है, और वो हम केयरफुली चल रहे थे, उसके लिए प्रॉपर एक ग्राउंड भी चाहिए। तो वो चीज़ें हमने काफ़ी बाद में शुरू की, मतलब सितंबर के आसपास हमने वो चीज़ें शुरू की थी कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। अदरवाइज हम लोग छोटे इंडोर गेम खिलाते थे जिसके लिए कोई स्पेशल टीचर की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं हुए तो हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस दिखा करके जो मोटिवेशन मिलता है बच्चों को कि हमने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उस प्लेटफॉर्म पे गए, वो चीज़ें बच्चों को एक्सपोजर के रूप में नहीं मिली। इस तरह की चीज़ें हैं। और टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी कम रहा लॉकडाउन की वजह से। शुरू में हमने 2-3 घंटे से स्टार्ट किया, फिर 4 घंटे किया, फिर 5 घंटे किया। अभी हमारे 5 से 5.5 घंटे ही क्लासरूम आवर्स होते हैं, जबकि फॉर्मल तरीके से जब स्कूल चल रहे थे तो हम 6 to 7 आवर्स हम लोग बच्चों के साथ डायरेक्ट क्लासरूम प्रैक्टिस करते थे। फिर हमारे अदर क्लब्स चलते थे, कुकिंग क्लब चलते थे, किचन गार्डन होता था, क्राफ्ट, ओरिगेमी, थिएटर, डांस, म्यूजिक, क्रिएटिव राइटिंग, इनका टाइम काफी कम हो गया था। अच्छा, जैसे मैंने देखा कि स्कूल का मैदान भी बहुत बड़ा है और वहाँ पे क्लासरूम भी बड़े हैं, खुले हैं, खिड़कियां हैं, तो वहाँ पे मतलब ये गांव वाले कंफर्टेबल नहीं है भेजने के लिए, या मतलब आप लोग ने ही बोला कि हम वहाँ पे नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, गांव वाले कंफर्टेबल है। गांव वालों को तो इतना विश्वास है कि उनसे ज्यादा हम समझते हैं, और अच्छा। हम जो भी फैसला लेंगे वो उनके फैसलों से कहीं ज्यादा अच्छे फैसले होंगे हमारे, तो उनका ट्रस्ट है उस तरह का। बाकी हम ही गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते ताकि स्कूल के रिकॉग्नाइजेशन को कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इस तरह के लीगल इश्यू से बचने के लिए हमने ये सारी चीजें कर रखी है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी 11:30 हो रहे हैं। अभी आई थिंक थोड़े वॉलंटियर्स ने भी ड्रॉप आउट कर गए, तो I don't know, Ranga, or if you have any other questions. Yeah, I don't have, but I really like the mini school concept. आपका concept बहुत अच्छा है, simple and best. You know, instead of just worrying about devices, technology, Zoom and internet, it's just simple. And it's very, it's excellent. I'm surprised that other schools are not doing it. It's such a simple and beautiful idea. Yeah. यहाँ पे भी जैसे मेरी बेटी है, वो
वो कंप्यूटर के सामने बैठती है बट वो ज्यादा देर बैठती नहीं है, तो वही प्रॉब्लम है। तो फिर हमने एक टीचर ढूंढी है, तो वो 3-4 बच्चों को बिठा के पढ़ाती है। वो प्री के में है अभी, तो उसमें उसके साथ भी वही है। बेटा है वो अलग, वो पूरा अपने आप ही पढ़ लेता है। तो especially the social and emotional aspects also, everything yeah. is covered. It's really Yes. good. Yeah, hats off to the team for Yeah. it. Seems simple, but it's not intuitive, or you don't go there first, right? You think, and there's no technological deficiency here, right? It's the best that you can do, and it's really effective. Also, we could not do it alone. I mean, if we would not be having confidence of the community, correct, this kind of setting up these kind of centers won't be possible at all. So it's also very important to have that sort of trust and that sort of relationship with the communities. One general question I had, I know Mohit, it's sort of late, but I think this, I've been involved with GSK just as a volunteer. I've been hearing, but it's amazing. Like just one virtual site visit is like eye-opening in some sense, right? So, you have eventually you groom these schools into model schools, right? And have the government adopt it. But it's still in terms of scale, right? As in you have a great working model, right? But it's still in terms of scalability, it's not fast, right? It's taking time, right? Each school or village takes about maybe 8 or 7 to 10 years. So it's sort of a slow process, right? So if you have to scale it up so that more schools benefit or the GSK's impact is wider and higher, right? So what should you do? So I think, so we as an organization believe that, so as Vishnuji also pointed out that education is a slow process, and you also said that it takes time. It takes minimum 8 to 10 years to kind of establish a model and then showcase what it actually can do, what it can do. So one thing is definitely, I mean, it's a slow process. We have been able to successfully demonstrate our idea of quality education to the community and to the nearby government schools. We also started another program, an outreach program called Vistar, where we are directly working with the government schools and helping them out in implementing these practices and these sort of approaches in their own classrooms. So I think that is what our model is. Udaya Community Schools are definitely model schools which are situated at the center of our unit of operation. And then we have 20 to 25 government schools which we want to work with. Girirajpura is now at a phase of its trajectory where now we can start to work with the government schools in the area. But the other two schools, there we have already been working with the government schools, and we are seeing a lot of changes because of the way we are functioning in our own schools. As in, for a wider outreach, would it like you're focused in Rajasthan and few districts, right? So if you have to reach whole of the state or even maybe whole of other states and then India, right? So is that, I know it's going to take a long time because your model is fantastic, right? So it seems like only few people are benefiting from it, right? So it can be like impactful at a much larger scale, right? But I know it's a lot of funds and all that, but be it at the national policy level so that it's implemented, right? So then it would be a bigger Vistar. Vistar was like a effort in that direction, right? Vibha was supporting it. I think again, maybe I don't know. Asha, Silicon Valley was also Vibha and WCT, Wildlife Conservation Trust. Yes. Yeah. But you cannot scale up so fast also. It has to be organically done, and that's what GSK is doing. But the thing is, it's such a beautiful way of operating, and it's just, it could potentially change so many other children's lives, right? So, right. I mean, as an organization which is based in Savai Madhopur and which is, we proudly say that we are community-based organization. So now our foremost priority is to work in Savai Madhopur and try to set up a model where another districts in Rajasthan or maybe outside Rajasthan can sort of learn from us and implement that model in their own states or districts.
But funding is also one big challenge that we as a grassroots organization always face. I mean, and that is why we do not generally think about scaling up the model in another districts, because it takes a whole lot of investment, not in terms of money, but also in terms of building up the team and putting up your energy and kind of coordinating the programs across the districts. So I think what are priorities at this point of time is try to create that sort of environment and that sort of model in one district, and then maybe at some point of time maybe other non-government organizations can learn from us. We'll be able to kind of help them out in scaling those things in their own districts. And if if a government is ready to adopt our model, we will be happy to work as a technical partner and academic partner for the government to implement this sort of approach. I mean, does the local maybe education, whoever this the representative, that's probably a grassroots level starting point, like how Punyaramji was saying that this Girirajpura school and the government school in Amli, they have been asking. So just then talking to the local government collector, I don't know who the local government representative is for education, who's responsible, starting at a more grassroots level and seeing and then sort of pushing it sort of bottom up rather than top down, right? Because it's harder to get things going from top down. Bottom up is like, okay, you feed you give that feedback from bottoms all the way up. Right. So that's what our approach has been since we started the Vistar program, because our relationship is more with the government school teachers than the district education officer. And that was the main, we actually saw that this is very impactful in terms of, because if there was no MOU at all, there was no sort of formal partnership with the government in the Vistar program. But when we built relationship with the government school teachers and school management committees, we could directly see the changes. We could directly, kind of have those sort of dialogue where both the parties are engaged with each other and learning from each other. Yeah, absolutely. Okay, I'll have to wrap it up. It's very late for me. Thank you so much, Shubham. Vishnuji, thank you so much. Ashokji, bahut dhanyawad. Thank you to you as well. Thanks, Ranga, for staying this late as well. This was really good. Yeah. Great, thanks a lot, Mohit, and everybody from Asha to conduct this call. I mean, it was wonderful. I think we should do this call at least once in every year. I think this makes a lot of sense, right? It's it's good. We should do it more often. If not visit the school, we'll just chat between the volunteers and Shubham, you, Vishnuji, and Ashokji at least. So we'll maybe hopefully do another one in 6 months, if not a year. Once a year is doable for sure. Yeah. So we have 8 projects right now. Might go to 10. So one project a month, I think it's good. Yeah. Let's see. But this is really good. Thanks a lot for sharing your thoughts and ideas. And